नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बुलेटिन में अगले आधा घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में आज और क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने बहस के दौरान गिनाई केंद्र की उपलब्धियां, विपक्ष ने सरकार के कामकाज और नीतियों पर उठाए सवाल। जीवंत और क्रियाशील संसद लोकतंत्र की जीवन रेखा। राज्यसभा के 267वें सत्र की शुरुआत पर सभापति का वक्तव्य। सदन की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखने का आह्वान। कहा, राष्ट्र सेवा की महान आकांक्षाओं से प्रेरित हो चर्चा और निर्णय। और लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पेश। सहकारी क्षेत्र में तकनीकी प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना उद्देश्य। वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों के तहत सहकारी अनुसंधान और विकास को मिलेगा बढ़ावा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि युवाओं को शिक्षा, अवसर और जिम्मेदारी की भावना से सशक्त बनाकर एक अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। सभापति आज राज्यसभा के 267वें सत्र को लेकर अपने वक्तव्य में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जीवंत और क्रियाशील संसद लोकतंत्र की जीवन रेखा है। Honorable members, the 267th session of Rajya Sabha is a milestone in the constitutional journey of Bharat, being the first one convened as we march into the last quarter of the century of adoption of our Constitution on November 26, 1949, an occasion of expression of profound gratitude to visionary founding fathers whose wisdom and foresight endowed us with a constitution that has remarkably shaped the destiny of our republic. In this journey of 75 years, we have embraced modernity without forsaking our timeless wisdom and heritage. Our collective dreams and aspirations have enabled strides in digital innovation and sustainable development to space exploration and infrastructure. Guided by the mantra of Vikas with Virasat, the march forward of Viksit Bharat by 2047 must be the North Star that anchors our collective efforts. It is incumbent upon us as members of this august house to rise to this calling with unwavering resolve. As the Council of States, the House of Elders, we must serve as both guardians of constitutional values and torchbearers of progressive thought. Let us emulate our founding fathers and seize the moment in history to leave our indelible footprints upon the sands of time. Our conduct must be exemplary, our deliberations wise and constructive, and our actions driven by the welfare of 1.4 billion citizens who place their faith in us. A vibrant and functional parliament is the lifeblood of democracy. In this sacred chamber, the voice of pluralistic, dynamic and aspirational society converges, particularly those of our youth who represent our nation's boundless energy and dreams. By empowering youth with education, opportunity and a sense of responsibility, we can craft a more inclusive and sustainable future. The Great Mahakumbh, a resplendent celebration of India's spiritual and cultural ascents, offers profound lessons for our journey, unity in diversity, collective well-being, and an abiding commitment to truth, tolerance, and harmony. As we engage with global community, let these principles remain the touchstones of our actions, ensuring that the well-being of every citizen remains at the heart of our endeavors. Honorable members,
Our task is monumental, so as to be our resolve. Let us pledge to uphold the sanctity and dignity of this House. Let our debates and decisions be guided by the noble aspirations of service to the nation. Let us work together across all divides to forge policies that elevate Bharat's standing on global stage. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our Constitution, I quote, "Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience. It is essential an attitude of respect and reverence towards our fellow men," unquote. May we ever mindful of this wisdom. As we embark upon this session, let us deliberate with purpose, cooperate with dignity, legislate with vision, mindful always that we carry the hopes and dreams of a billion hearts. Together, let us chart a course towards a future that fulfills the promise made in the Constitution. इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत सदस्यों के जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता और नरेश बंसल को उनके जन्मदिन पर सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। उच्च सदन ने अपने पूर्व सदस्य दिवंगत पलवलास राजशेखरम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। सभापति ने सदन में और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया। इसके बाद सदस्यों ने कुछ देर मौन रखा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कार्य मंत्रणा समिति के बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी सदन को दी। साथ ही उन्होंने उच्च सदन में उपसभापति के पैनल के पुनर्गठन की जानकारी भी दी। I have to inform members that panel of vice chairmen has been reconstituted with following members: श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, सुश्री सुष्मिता देव, श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती संगीता यादव, श्री घनश्याम तिवारी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्री पी विल्सन, श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत मिले नोटिसों को लेकर सदन को जानकारी दी। ऑनरेबल मेंबर्स में रिकॉल my detailed ruling giving the total rationale how issues with respect to Rule 267 have to be dealt with on 8th December 2022 and 19th December 2022 on number of occasions for the benefit of the members of the House. I have reiterated the same. Since these notices do not conform to the directives imparted by the chair, the same are not. इसके अलावा सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और उसके समाधान की मांग की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। सदस्यों ने नमामि गोदावरी नदी सफाई पहल, उड़ान सुरक्षा उपायों को बढ़ाए जाने और राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने से जुड़े प्रश्नों के संबंधित मंत्री की ओर से जवाब दिए गए। उच्च सदन में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने राम मंदिर निर्माण और 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट देने जैसे कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने दिल्ली में नागरिक सुविधाओं का विषय उठाया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। Our present BJP government has taken the historic decision of declaring MSP for all the Rabi, Kharif crops and commercial crops which are mandated by the Commission of Agricultural Costs and Prices at the rates 50% over and above the weighted national average cost of production. Not only this, in order to make agriculture viable and sustainable in the long run, our government has taken a multi-pronged strategy and not just done merely quick fix solutions like the erstwhile Congress government always did. मुद्रा योजना,
आज पहले उसमें कितना था? पहले 10 लाख, पहले और कम था, फिर उसको 10 लाख किया गया। 10 लाख को मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। ये हमारे इससे नौजवान लोग इस लोन को ले रहे हैं, अपने उद्योग खोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था तो हमारे विपक्ष के साथी उसका मजाक उड़ाते थे कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये काम माननीय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। And the world recognized India as a responsible nuclear power. I had the honor, sir, in 2005 of speaking in the Lok Sabha as a young MP at the age of 28 in favor of the Indo-US nuclear deal. And I think that one point which is very clear, कि this bipartisan commitment which cuts across party line, that when it comes to India's sovereignty and India's security, the country must speak in one voice. The world now recognizes us as a responsible nuclear power, and I'm extremely grateful to the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for initiating the next step of reforms in the nuclear sector that will ensure that we remain a leader in nuclear energy. So in the budget speech of the Finance Minister, in this budget and in the last budget, the Finance Minister spoke about how India plans to undertake major reforms in its nuclear sector. So भारत एक और historic, एक ऐतिहासिक economic reform करने जा रहा है, which will allow private sector participation in nuclear energy generation. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने देश की छवि खराब की है, बल्कि महाकुंभ जैसे आयोजन पर भी राजनीति करने की कोशिश की है। अच्छी तरीके से इनकी एक एक बेबुनियाद बातों का, निराधार बातों का, असत्य बातों का, देश को गुमराह करने वाली बातों का और पूरी तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय इमेज को खराब करने की जो कोशिश लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने की है, उसका अच्छा जवाब हमारे वक्ता जरूर देंगे। पर 2-3 प्रमुख आंकड़े, क्योंकि इन्होंने पूरे असत्य आंकड़े देश और दुनिया के सामने सदन के माध्यम से रखे। Was belief in the nation, its civilizational ethos, would be shell-shocked. When leader of the opposition said thousands have been killed. An outlandish, outrageous, unacceptable. I therefore, unacceptable are the deaths in court. I therefore direct leader of the opposition Today we don't know how many hundred to authenticate the statement he has made during course of the day. This is too serious a matter to be overlooked or countenanced. We cannot have a statement made in this house to generate sensation, to hurt feelings, to generate chaos in the country, and therefore, let me conclude. Having taken note of the statement and assertion where I pleaded with the leader of the opposition, invoked his seniority to please withdraw that statement. He stuck to it. And his only defense was that if not prove it otherwise, I have given a ruling already. This is not a place for free fall of information. Everything is spoken here gives you protection from consequences outside. No civil or criminal action can take place for this statement, because this statement has been made by Shri Mallikarjun Kharge on the floor of the House. I therefore find it imperative and expedient during course of the day, till conclusion of the proceedings of the day, I
call upon leader of the opposition to substantiate the premise of his statement that in that mishap, thousands had lost their lives. I now call upon. Let him. Leader of opposition has quoted NCRB data. He's not yielding. NCRB data saying that lakhs of farmers have died. Can leader of opposition substantiate by putting on record, or on what basis he has made this claim? Lakhs of farmers have died, and he also mentioned this is the data from the NCRB. Same as he misled by claiming that thousands of people have died in Kumbh. So leader of opposition is a very important institution, and the person who occupies the leader of opposition is well respected. So we expect the honorable leader of opposition to substantiate this particular statement by whatever means the honorable chair may tell. राज्यसभा में सभापति ने सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित रूस की संसद ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन के नेतृत्व में आए रूसी संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। I have great pleasure in welcoming His Excellency Vyacheslav Volodin, Chairman of the State Duma of the Federal Assembly, Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, and members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. We have strong bilateral relations with Russia. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Moscow on Sunday, February 2, 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet and call on various dignitaries in Delhi. Besides Delhi, they will also visit Mumbai before their departure from India. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament, the government, and the friendly people of Russian Federation. और अब बात लोकसभा की कार्यवाही से। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबे और नारेबाजी के बीच भी प्रश्नकाल जारी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने प्रयागराज कुंभ में व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए अवरोध शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में व्यवस्था है कि प्रश्नकाल के दौरान किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती तो सदस्यों को शांतिपूर्वक प्रश्नकाल चलने देना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है जिसमें वो अपनी बात रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है। सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें, एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं
तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी हस्तक्षेप करते हुए प्रश्नकाल बाधित न करने का सदस्यों से आग्रह किया। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। प्रश्नकाल के आखिर में लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन मुद्दों को उठाने की अपील की जिनका वे सरकार से उत्तर चाहते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन मुद्दों को, जिन विषयों को आप उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण में आप उन सारे मुद्दों, विषयों को उठा सकते हैं। मैं आप सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि कई संसदीय प्लेटफॉर्मों पर ये यहाँ भी निर्णय हुआ है और भी निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए और आपको भी प्रयास करना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रश्नकाल चले और प्रश्नकाल के बाद आप जो भी विषय उठाने चाहें वो 12 बजे उठाए। इस परंपरा को आप कायम करो। आप वर्षों तक वरिष्ठ सदस्य रहे हो, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम संसद की एक बेहतरीन व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करें और प्रश्नकाल के अंदर ये संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं करने देंगे। ऐसा मेरा आग्रह है। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए रूस ड्यूमा के अध्यक्ष के नेतृत्व में आए रूसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मुझे आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में रशियन फेडरेशन की फेडरल असेंबली के स्टेट डूमा के चेयरमैन मामैम व्याचेस्लाव वोलोदिन जी के नेतृत्व में रूसी संघ का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित हुआ है। मैं अपनी ओर से तथा सदन से की ओर से माननीय शिष्टमंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री वोलोदिन और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भारत रूस संबंधों की गहराई का प्रतीक है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और रूस के बहुत गहरे और दीर्घकालीन संबंध रहे हैं। इस यात्रा से हमारी दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी व संसदीय संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम रूस की संसद तथा वहाँ की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
लोकसभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें रेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। वर्ष 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा गया। विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद येशो नाइक ने जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम घटक के अंतर्गत पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव पेश किए गए। और आज लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी ने इस चर्चा की शुरुआत की। बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। माननीय सभापति जी, मेरे लिए ये बेहद सौभाग्य की बात है कि मुझे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण न केवल भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के वाली सरकार की नीतियों का दर्पण है, बल्कि यह देश के उज्जवल भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करने वाला है। आदरणीय सभापति महोदया, ये भारत का सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध राजनेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिनके हृदय में इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रेम का सागर उमड़ता है। उन्हें इस देश की माटी से बेहनता लगाव है और उनकी आंखों में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना निरंतर पलता है। इस देश के विपक्ष का एक बड़ा परिवार है, वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था, वो डॉक्यूमेंटेड है। आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के। मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी LLB में टॉप, BA ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी। 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी, त्याग कर दिया और बाद में जेल गए। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज जो ये पूर्वांचलियों को लेकर कुछ लोगों के मन में परेशानी है, भारत का भी विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा और पूर्व उदय भी होगा, ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बात कही है। और अब कोऑपरेटिव्स को भी प्रोफेशनल्स देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी के लिए सहकारी समितियों के लिए योग्य मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने आज लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया। विधेयक के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अखिल भारतीय और केंद्रित तरीके से सहकारी क्षेत्र में कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों की क्षमता निर्माण के लंबे समय से लंबित मुद्दे को भी हल कर सकेगा। श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी जाए।
प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदया, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। फिलहाल कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।